ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ ویسٹ بنگال میں جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ہے، روزانہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، مختلف کاموں سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے، مذہبی شعار پر عمل کرنے سے بھی اب روکا جا رہا ہے، اور کئی فیصلے لگاتار مسلمانوں کے خلاف آ چکے ہیں۔ جب بی جے پی کی سرکار بنی، بی جے پی کی جیت ہوئی، تو دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ ویسٹ بنگال کو بدلا جائے گا، ویسٹ بنگال کو ترقی یافتہ بنایا جائے گا، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ صرف مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایک معاملے میں کلکتہ ہائی کورٹ سے مسلمانوں کو راحت ضرور مل گئی ہے، لیکن ابھی کئی معاملے ایسے پڑے ہیں جو پینڈنگ میں ہیں، اور آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کے عقیدے کا محفوظ رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سب سے بڑا معاملہ تھا بلڈوزر کا، مسلمانوں کے گھروں کو توڑنے کا۔ تپسیہ ایک مسلم میجورٹی علاقہ ہے کولکاتہ کا، اور مسلمانوں کی اچھی خاصی وہاں آبادی پائی جاتی ہے، بلکہ پورا جو تپسیہ کا علاقہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، جو تلجا علاقے میں آتا ہے، اسی طرح اقبال پور ہے، مومن پورہ ہے، یہ سب علاقے وہ ہیں جو مسلم میجورٹی علاقے ہیں۔ اب اتفاق سے 2 دن پہلے تپسیہ میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی وجہ سے 2 کی موت ہو جاتی ہے، 3 زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب اس ایک واقعہ کی وجہ سے سیدھے بنگال کے نئے چیف منسٹر شیویندو ادھیکاری نے یہ اعلان کر دیا کہ ویسٹ بنگال میں جہاں جہاں اللیگل مکان بنا ہوا ہے، نقشہ پاس کر کے گھر کی تعمیر نہیں کی گئی، ان سب کو بلڈوز کیا جائے گا، ان کی جانچ کی جائے گی، اور ایسے تمام مکانات، ایسی تمام بلڈنگیں جس کا نقشہ پاس نہیں کیا گیا، جس نے غیر قانونی طریقے سے تعمیر کی ہے، ان کو بجلی کی فراہمی نہیں کی جائے گی، ان کا بجلی روک دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی شیویندو ادھیکاری نے یہ اعلان کیا، فوراً ڈی ایم سی نے، لوکل اتھارٹی نے بلڈوزر کو بھیج دیا تپسیہ میں، اور 2 مکانوں کو بلڈوز کر دیا گیا، اور ان 2 بلڈنگوں میں تقریباً 10-12 فیملی رہتی تھی، ان کا فلیٹ تھا، انہوں نے اپنے پیسے سے اس کو خریدا تھا، اور لگاتار دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ صرف ان 2 بلڈنگ کو بلڈوز کرنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ جتنا اس علاقے میں اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے بنا ہوا ہے، ان سب کو توڑا جائے گا، بلڈوز کر دیا جائے گا۔ لگاتار سوشل میڈیا پر رائٹ ونگ نے جشن منانا شروع کر دیا کہ اتر پردیش کا بلڈوزر اب ویسٹ بنگال میں پہنچ چکا ہے۔ جس طرح یوگی آدتیہ ناتھ نے یوپی میں بہت سارے لوگوں کے گھروں کو توڑا، ان کے مکانوں کو بلڈوز کر دیا، صرف کوئی الزام لگا اور سیدھے بلڈوزر سے گھر کو توڑ دیا گیا، بعد میں عدالت میں وہ الزام غلط ثابت ہوا، یا کسی کا کوئی معاملہ نہیں، بس کوئی بہانہ چاہیے تھا گھر کو توڑنے کے لیے، اور یوپی میں کیا گیا۔ اب ویسٹ بنگال کو لے کر کے بھی جشن منایا گیا، لیکن وہاں کے ایکٹیوسٹ نے کلکتہ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور مطالبہ کیا، یہ جو اللیگل تعمیر کے نام پر بلڈوزر کی کارروائی کی جا رہی ہے، غیر قانونی ہے، کیونکہ اللیگل کنسٹرکشن ویسٹ بنگال میں صرف مسلم میجورٹی علاقے میں نہیں ہے، پورے ویسٹ بنگال میں، پورے کولکاتہ میں اللیگل تعمیر ہے۔ ہر ایک، بلکہ اگر جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے، تو 70% سے زیادہ بلڈنگ اور مکانات وہ ہیں جنہوں نے نقشہ پاس نہیں کرا رکھا ہے، جنہوں نے قانونی پرمیشن نہیں لے رکھی ہے، جو اللیگل ہے، ان اتھورائزڈ ہے، تو ان سب کو نہیں توڑا جا رہا ہے، صرف مسلم علاقے کو ہی توڑا جا رہا ہے۔ کیا صرف مسلم علاقوں میں ہی اللیگل اور ان اتھورائزڈ بلڈنگ اور عمارتیں موجود ہیں؟ کولکتہ ہائی کورٹ نے ان تمام دلیلوں کو سیریس لیا، اور فی الحال بلڈوزر کی کارروائی کو کلکتہ ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ میں جج ہیں جسٹس راجا باسو چودھری، وہ اس عرضی کی سنوائی کر رہے تھے۔ انہوں نے سنوائی کے دوران یہ بھی کہا کہ اس بات میں سچائی ہے کہ ممتا بنرجی کی حکومت میں ویسٹ بنگال میں غیر قانونی تعمیرات زیادہ ہوئی ہے، اللیگل کنسٹرکشن ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈوز کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر روک لگا دیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن 2 بلڈنگوں کو توڑا گیا ہے، دوبارہ اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی، دوبارہ اس کو نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس بلڈنگ میں رہ رہے تھے وہ کہاں رہیں گے؟ ان کو معاوضہ دیا جائے گا، ان کو کوئی نیا گھر دیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بھی کلکتہ ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور نہ ہی سرکار کی طرف سے ان کو کہیں بسائے جانے کا کوئی وعدہ کیا گیا ہے۔ دعویٰ تو یہی کیا گیا تھا، پوری کوشش تھی کہ 4-5 جو کلکتہ کی مسلم میجورٹی علاقے ہیں، اس میں تپسیہ ہے، تلجا ہے، اقبال پورہ ہے، مومن پورہ ہے، ہاورہ کا علاقہ ہے، وہاں بلڈوزر کی کارروائی کرنی ہے، لیکن فی الحال کلکتہ ہائی کورٹ نے
रोक लगा दिया है। दूसरी अहम तरीन खबर वंदे मातरम का है। वंदे मातरम को लेकर पिछली वीडियो में भी मैंने तबसरा किया था कि वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने कलकत्ता के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ना लाजमी करार दे दिया है। वेस्ट बंगाल में तकरीबन 30 से 32% मुसलमानों की आबादी है। कुछ इलाके वेस्ट बंगाल के ऐसे हैं जहाँ 80% मुसलमान हैं, 90% मुसलमान हैं, जैसे मुर्शिदाबाद का कुछ इलाका, नॉर्थ 24 परगना का इलाका, साउथ 24 परगना का इलाका, कलकत्ता के हावड़ा का इलाका, या खुद यही तबसिया या दूसरे इलाकों का जो नाम आप सुन रहे हैं। अब इन इलाकों में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ाने वाले तकरीबन ज़्यादातर मुसलमान हैं, पढ़ने वाले ज़्यादातर मुसलमान हैं, बल्कि कुछ सरकारी स्कूलों में 100% बच्चे मुसलमान हैं। अब तमाम सरकारी स्कूलों के लिए एक आदेश जारी कर दिया है वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने। वंदे मातरम पढ़ना उनके लिए लाजमी होगा, ज़रूरी होगा। और वंदे मातरम का जो ऑफिशियल वर्ज़न है वो 3 मिनट 10 सेकंड का है। और इस नज़म की शुरू की 2 लाइनें तो ठीक है, उसका मुसलमानों के अक़ीदे पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन बकिया जो पूरी नज़म है उसमें भारत को देवी की शक्ल में पेश किया गया है और कहा गया है कि देवी की पूजा करना है, भारत की परस्तिश करनी है। और इस्लाम में एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, किसी की पूजा, किसी की परस्तिश जायज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी नज़म पढ़ता है, कोई ऐसा एंथम पढ़ता है तो वो शिर्क का मुर्तकिब होगा। अब वेस्ट बंगाल के तमाम सरकारी स्कूलों को वंदे मातरम पढ़ने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम बच्चों को शिर्क का इर्तिकाब करना पड़ेगा, मुस्लिम बच्चों को शिर्की अल्फाज अदा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये फ़ैसला सीधे सीधे मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुंचाने वाला है। और इसका सलूशन ये भी नहीं है कि आप ये कह दें कि ठीक है सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम पढ़ने को लाजमी करार दे दिया गया है तो हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे बल्कि प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और वहाँ हमारे बच्चे शिरकिया अल्फाज अदा करने से बच जाएंगे। ये सलूशन नहीं है, क्योंकि सरकार में हमारी बराबर की हिस्सेदारी है। सरकार स्कूल चलाती है हमारे लिए हुए टैक्स के पैसे से, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ना हमारा बुनियादी हक़ है। लेकिन सरकारी स्कूलों में एक जमहूरी देश में, सेकुलर स्टेट में, अगर हमें मजहबी आज़ादी से महरूम रखा जाएगा, हमें कुफ्रिया शिरकिया अल्फाज अदा करने पर मजबूर किया जाएगा, तो उसके लिए हमें कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये सलूशन नहीं है जिस तरह बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आकर लिख रहे हैं कि हमें प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना है, सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना है। कितना प्राइवेट स्कूल आप कायम करेंगे? बेशुमार ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल है, और वहीं से बच्चों को डिग्री मिलेगी, वहीं बच्चों को पढ़ना होगा। प्राइवेट स्कूल अगर आप खोल भी लेंगे तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा, वेस्ट बंगाल का बोर्ड उसे मंजूरी नहीं देगा। फिर आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ा भी तो लेंगे, लेकिन वहाँ पढ़ने वाला बच्चा एक मदरसे के प्रोडक्ट जैसा होगा जिसके पास कोई डिग्री नहीं होगी। फ़िलहाल जो वंदे मातरम को लाजमी करार दिया गया है उसे सरकारी स्कूलों के लिए ज़रूरी बताया गया है, प्राइवेट स्कूलों के लिए ज़रूरी नहीं बताया गया है। लेकिन जैसे ही सरकार को पता चलेगा कि आप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, सरकार अगला फ़ैसला ये सुना सकती है कि प्राइवेट स्कूलों को भी वंदे मातरम को लाजमी तौर पर शामिल करना होगा। अगर सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल कर लिया अपने फ़ैसले में तो फिर आपको प्राइवेट स्कूलों में भी अपने बच्चों को ही पढ़ाना होगा। सरकार धमकी देगी, कहेगी अगर आपने अपने प्राइवेट स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करार नहीं दिया तो स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, स्कूल को इलीगल माना जाएगा, अनऑथराइज्ड माना जाएगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और आपको मजबूर होकर अपने स्कूल को बचाने के लिए, स्कूल की इमारत को बचाने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी वंदे मातरम पढ़ने को ज़रूरी करार देना होगा। इसलिए ये सलूशन नहीं है कि आप बड़ी बड़ी इमारतें बना लें और आप ये कहें कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल है। अगर सरकारी स्कूल में वंदे मातरम को ज़रूरी करार दिया गया तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है, बल्कि आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। हैरत की बात यह है कि वेस्ट बंगाल में स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करार दिया गया है और मुस्लिम लीडरशिप चुप है, खामोश है, किसी का कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है।
वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने सड़कों पर नमाज को लेकर भी एक बड़ा फैसला कर लिया है। उमूमन मुसलमान मस्जिद में ही नमाज अदा करते हैं और मस्जिद के बाहर जो गली होती है, जो छोटी सी सड़क होती है, वहाँ तक सफ़ लग जाती है। और ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर है वहाँ ऐसा होता है क्योंकि वहाँ जगह की कमी होती है, आबादी ज़्यादा होती है। अब जब जुमा की नमाज़ मुसलमान कोलकाता में अदा कर रहे थे, कल की बात है, वेस्ट बंगाल की पुलिस तमाम बड़ी मस्जिदों के बाहर पहुँच गई और उन्होंने मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा करने से रोक दिया। वेस्ट बंगाल की पुलिस ने कहा कि आप सड़क पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ये सरकार का आदेश है, आपको मस्जिद के अंदर नमाज अदा करनी होगी। मुसलमानों ने कहा हम यहाँ बरसों से नमाज अदा कर रहे हैं, हमने सड़क को मस्जिद में तब्दील नहीं किया है, बल्कि सामने मस्जिद है, वहाँ नमाज अदा हो रही है, मस्जिद के अंदर जगह कम पड़ गई है, इसलिए सफ़ बाहर तक आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि हम सिर्फ रोड पर नमाज अदा कर रहे हैं और उसकी वजह से हम पर लाठियाँ चलाए जाए। मुसलमानों ने एहतजाज किया, हंगामा हुआ, ये वीडियो भी वायरल हुई, इसे देखिए। यार हम लोग का देखिए हंगामा शुरू हो गया है जुमा का नमाज का लेकर के। सभी भाइयों से अपील है कि अच्छा से आप लोग रहिए, मिलजुल के रहिए। अब मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा करने से तो रोका जा रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का जितना त्यौहार होता है, खा वो दुर्गा पूजा हो या काली माँ का पूजा हो, ये जितने त्यौहार आते हैं इन सब के लिए सड़कों पर पंडाल लगाए जाते हैं, सड़कों पर ये तमाम पूजा पाठ किए जाते हैं। तो क्या हिंदुओं को भी सड़कों पर पूजा पाठ करने से रोका जाएगा या ये फैसला सिर्फ मुसलमानों के लिए है? कुर्बानी को लेकर पहले ही वेस्ट बंगाल सरकार का फैसला आ चुका है। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से बताया था कि तमाम बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए वेस्ट बंगाल में मुसलमानों को पहले नगर निगम से या पंचायत के सदर से परमिशन लेनी होगी और सिर्फ नगर निगम या पंचायत के सदर की परमिशन काफ़ी नहीं होगी, बल्कि जानवरों के सरकारी डॉक्टर की मंजूरी भी लेनी होगी। इसके अलावा खुले में अपने घर में कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि जो स्लॉटर हाउस है वहीं कुर्बानी करने की इजाज़त होगी। पहले ही सविंदु अधिकारी ने यह फैसला कर रखा है। अब वंदे मातरम पर एक नया तनाज़ो पैदा हो गया। हुमायूं कबीर, जिसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है, उसने वंदे मातरम के बारे में कहा कि उसको पढ़ने में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम देश का कौमी गीत है, देशभक्ति वाला गीत है, तो अगर कोई वंदे मातरम पढ़ता है तो उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हमें वंदे मातरम पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हुमायूं कबीर के बयान को, और हुमायूं कबीर से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए मुर्शिदाबाद के लोगों को, क्योंकि वही हुमायूं कबीर है जिसने 1000 करोड़ रुपए में डील किया था, सौदा किया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएगा, मुसलमानों के वोट को मुंतशिर करेगा, हिंदुओं को भड़काने का काम करेगा, और इसने उस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। हैरत की बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऐसे शख्स से जाकर अलायंस कर लिया था और बाद में सिर्फ उन्होंने अपना अलायंस ख़त्म कर लिया, लेकिन हुमायूं कबीर के ख़िलाफ़ ज़्यादा कुछ अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। वेस्ट बंगाल में कुछ और मामले भी सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लेकर अब बहुत ज़्यादा तनाज़ो हो रहा है। खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग ममता बनर्जी की पार्टी को अब छोड़ रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज एक बयान भी जारी किया, अपने पार्टी वर्करों से उन्होंने बातचीत की और कहा जिसको टीएमसी छोड़कर जाना है, जो टीएमसी की सियासत के साथ खुश नहीं है, वो छोड़कर जा सकता है। मैं दोबारा टीएमसी को मजबूत बनाऊंगी, पार्टी को दोबारा खड़ी करूंगी, अपने दफ्तरों को दोबारा मैं रंगूंगी, दोबारा उसकी मैं मरम्मत करूंगी, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वेस्ट बंगाल का इतिहास ये है, वहाँ की तारीख़ यह है कि जब भी वेस्ट बंगाल में एक पार्टी की जीत होती है, सरकार बनती है, तो वहाँ से अपोजिशन का ख़ात्मा हो जाता है और अपोजिशन में जो पार्टी रहती है उसके वर्कर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, वो सरकार बनने वाली पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे पहले यही कांग्रेस के साथ हुआ, सीपीएम के साथ हुआ और शायद अब वही
टीएमसी के साथ होने जा रहा है। टीएमसी के कई लीडरों ने पहले ही ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, उन्होंने उनकी पार्टी को छोड़ दिया। कुछ ने तो बाज़ाब्ता शुवेंदु अधिकारी की तारीफ़ करना शुरू कर दिया। एक बंदा, इसका नाम मुझे याद नहीं है, ये टीएमसी का नेशनल स्पोक पर्सन था। जैसे ही सरकार बनी बीजेपी की, उसके अगले ही दिन इसने टीएमसी को छोड़ दिया और इसने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। शुवेंदु अधिकारी की इसने तारीफ़ करना शुरू कर दिया और उसके बाद ही टीएमसी ने इसको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इसने बीजेपी की तारीफ़ की थी, शुवेंदु अधिकारी की तारीफ़ की थी, पार्टी के ख़िलाफ़ काम किया था, तब पार्टी को एक्शन लेना पड़ा था। और अब लगातार छोटे लेवल के वर्कर पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ बड़े लेवल के जो वर्कर हैं वो भी पार्टी को छोड़ने की बात कर रहे हैं और इसलिए ममता बनर्जी को आज ये कहना पड़ा कि जो कोई भी टीएमसी की सियासत के साथ खुश नहीं है वो पार्टी को छोड़कर जा सकता है। मैं हारी नहीं हूं, अवाम ने हमें वोट किया है, हमारे मैंडेट को चुराया गया है, काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है, इसलिए मैं दोबारा कोशिश करूंगी, अपनी पार्टी खड़ी करूंगी। एक और ख़बर है और ख़बर यह है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अभिषेक बनर्जी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बीजेपी के वर्करों को धमकी दी थी, डराया था और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।